the best foods to clean out your liver. Your liver is not necessarily dirty, okay? It doesn't accumulate toxins. In fact, its main function is to detoxify toxins and poisons and chemicals, but it's not a storage facility for poisons and chemicals unless you have a fatty liver, because these toxins are stored in your fat cells. Now, when your liver gets inflamed, it heals with scar tissue, and you can develop cirrhosis, and you can lose function and create all sorts of issues. But the liver itself is not a reservoir for toxins. So I want to shift my talk into the best foods to reestablish the full function of your liver, to get your liver able to detoxify at the highest level. And you can totally do this with foods. So we're going to cover all those, but I want to first talk about the different functions of the liver, okay? It has the ability to detoxify. It makes bile. Bile is a detergent to help you break down fats and extract certain nutrients from fat. Your liver is a main producer of hormones. That's right. One being IGF-1, insulin-like growth factor number 1. Now, what is that? That is a very similar hormone to growth hormone. Growth hormone is made by your pituitary gland. It's sent to the liver. It works through the liver. And you can kind of consider IGF number 1 as an extension of growth hormone. It performs very similar functions. So it has everything to do with helping you burn fat. It's a anabolic hormone, so it helps you build muscle. It has everything to do with building proteins. And it also can help tap into your fat reserves and your stored sugar reserves for fuel. Now, your liver also makes steroid hormones, okay? Like estrogen, progesterone, testosterone, vitamin D3, which, by the way, acts like a hormone in the body. In fact, it probably is a hormone, but we classified it as a vitamin. And the other sex hormone is cortisol, the main anti-inflammatory hormone in the body, the main hormone that helps you adapt to stress. So without cortisol, your body can't adapt to stress, and you're going to get really stressed out. In fact, 80% of the cortisol floating through your bloodstream originates from your liver. So all these steroid hormones come from this one thing, cholesterol. And so the liver is part of the building block of not just cholesterol, but a real key part in the creation of those hormones. And what's interesting is that people take certain drugs to block cholesterol, like statins. Well, guess what's going to happen to these hormones? You're not going to be able to make them efficiently. You're going to have all sorts of issues. And your liver makes a good portion of the cholesterol in your body. And take a wild guess what material it makes cholesterol from. If you guess dietary sugars, you are correct. So cholesterol is made from carbs. And cholesterol also makes certain proteins that transport things in the body, like cholesterol, like estrogen, like testosterone, different hormones. Because these hormones made from cholesterol can't travel that well through the blood, your liver packages them in proteins so they can be transported. So your liver has a post office function in that it is able to package certain things and send them throughout the body. Now, these proteins just don't transport certain things. They also buffer or regulate certain hormones. So if there's too much estrogen, for example, or too much cortisol, your liver will buffer that with these proteins to make sure that things are in balance. All right, so those are just some of the many functions of the liver. Your liver actually has 500 different functions. Now, before I get to the food, I just want to briefly mention the different symptoms that occur when you have damage to the liver. One would be itchiness in the body. Another one would be that your skin and the whites of the eyes turn yellow. It's called jaundice. The next one is lethargy and joints. So many people who are stiff and have inflammation in the joints really. This jogging means the eye color, eye white area like a scarab become yellow. That jogging means okay. And joint, actually joint means pain in the joint. Some people have pain in joint. So let's continue with the video.
have a liver problem. Feeling nauseous is a big symptom of the liver. Nausea means some pain in the brain or some kind of headache. Having a lowered cognitive function could be liver related. And if you have gallstones, there's definitely a problem with the liver simply because the liver makes bile and it's a deficiency of bile. Gallstone means some kind of stone created in the bile. It is a symptom of your liver has some fat. And a high level of cholesterol that makes you end up with gallstones. All right, so now let's dive into the best foods. All right, so now let's dive into. All right, all right, so now let's dive into the best foods for your liver. Okay, number one. Before I get to the food, I just want to briefly mention the different symptoms that occur when you have damage to the liver. One would be itchiness in the body. Another one would be that your skin. Itchiness means some kind of pain in the body. You know, sometimes some people pain feel in the body. It is a symptom of fatty liver. And the whites of the eyes turn yellow. It's called jaundice. Like sometimes we have the eye here in the white area get yellow. That is stronger. The next one is lethargy. And then you have achy joints. So many. So itchy joint means some kind of pain in the joints of the body. Like in our hands, there's a hand joint or shoulder joint. We got pain. It is a symptom of fatty liver. People who are stiff and have inflammation in the joints really have a liver problem. Feeling nauseous is a big symptom of the liver. Having a lowered cognitive function could be liver related. And if you have gallstones, Gallstone means we got stone inside the uh, bile. That is known as gallstone. there's definitely a problem with the liver simply because the liver makes bile and it's a deficiency of bile and a high level of cholesterol that makes you end up with gallstones. All right, so now let's dive into the best foods for your liver. Okay, number one. So now they say that what is the best food to clean the liver or to make the liver like healthy. Otherwise, our liver get old or liver get unhealthy, so it will cause problem. So now this vegetable increase the health of the vegetable, increase the health of the liver. So must eat this food, these vegetables. Cruciferous vegetables. Okay, talking about kale, broccoli. So there are the class of vegetable known as cruciferous vegetables. First one is kale. Second one is broccoli. Brussels sprouts. Then Brussels sprout. Then radish. Radish means uh, radish also is a vegetable. Might be Radish, arugula, wasabi, mustard greens. They are all cruciferous vegetables. They are very high in a natural phytonutrient called sulfur. so mustard is also a vegetable which is good. So these all vegetable have this compound sulfur which help. And sulforaphane helps to detoxify the liver. So this compound sulfur which is in the in those vegetables help to detoxify the liver. It helps the liver to get rid of inflammation, and inflammation leads. So
These compounds suffering help to detoxify the liver. Like ये जो कंपाउंड है सफरिन, ये ना लीवर में से ना जो टॉक्सिक केमिकल है ना उनको निकाल के बाहर फेंक देता है. सो सो हेल्प द लीवर गेट रिड ऑफ इन्फ्लेमेशन. सो हमारे जो लीवर के अंदर जो इन्फ्लेमेंटेशन होती है ना, मतलब ऐसे केमिकल होते हैं जो कि लीवर को भी डैमेज करते हैं और बॉडी को भी जाके डैमेज करते हैं. तो उन केमिकलों से ये जो कंपाउंड है सफरीन, जो उन सब्जियों में से आता है जो भी पहले बताई हैं, उन सब्जियों, ये केमिकल उन सब्जियों में से हमारी बॉडी में आता है. और ये हमारे लीवर को भी साफ़ करता है और हमारे बॉडी में से इन्फॉर्मेशन निकाल के फेंकता है. तो हमारी बॉडी के लिए और लीवर के लिए बहुत अच्छा है. तो हमें यह पुरानी जो हमने पहले सब्जियां बताई हैं उन सब्जियों को खानी चाहिए. जैसे कि वो सब्जियां इस क्लास के अंदर आती हैं, कुछ फायर वेजिटेबल्स के अंदर. ठीक है ना. ये पहला स्टेप है लीवर को साफ़ करने का. to insulin resistance. It leads to high insulin. सो ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को साफ़ करने के लिए. कुछ लोगों के अंदर डायबिटीज़ हो जाती है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस उनके अंदर आ जाती है. तो ये अगर हम करेंगे तो इससे हमारी डायबिटीज़ भी थोड़ी पीछे हो सकती है. It leads to diabetes and it can even lead to cancer. So sulfur. सो ये जो केमिकल है सल्फरिन जो उन वेजिटेबल में से आता है, ये हमारे डायबिटीज़ को भी पीछे कर लेता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर, और इसी वजह से हमारे बॉडी में हम कैंसर से भी बच सकते हैं और भी बहुत सी बीमारियाँ जो इन्फ्लेमेशन से पैदा होती हैं. ये तो हमें वो सब्ज़ियाँ खानी चाहिए जो भी हमने पहले बताई, उनको भी हम डिटेल में बात करेंगे उसकी आगे. Sulforaphane is a really important liver protective compound, and it can also help if there's fat in the liver. And with जैसे कि आप देख रहे हो, उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे फैटी लीवर है और उल्टे हाथ पे हेल्थी लीवर है. हेल्थी मीन्स साफ सुथरा लीवर जिसमें कोई फैट नहीं है, और फैटी लीवर वो लीवर जिस लीवर के ऊपर फैट लग चुके हैं. तो ये फैट को हटाने के लिए ये वेजिटेबल्स हैं और ये फूड है. अगर आप इनको खाओगे तो आपके लीवर के ऊपर से फैट हट जाएगी, तो आपका लीवर अच्छा साफ़ सुथरा हो जाएगा. फिर आप जब साफ़ सुथरा लीवर हो जाएगा तो आप हर बीमारी से दूर रहोगे, ख़ास तौर पे डायबिटीज़ और दूसरी प्रॉब्लम से और कैंसर वगैरह से. ठीक है, हो गया. enough sulforaphane, let's say, for example, if you drank too much coffee, sulforaphane helps to quickly detoxify things like caffeine, drugs, chemicals, and even poisons. Eating. तो ये बता रहा है कि जो वो सब्ज़ियाँ खाओगे जो आपको अभी पहले बताई हैं, जो कि ये सामने नज़र आ रही हैं, तो जैसे ब्रोकली वोकली हो गई. ठीक है. तो फिर क्या होगा, अगर आप सपोज़ को आपने गलती से ज़्यादा चाय पी ली या गलती से ज़्यादा कैफ़ीन वाले प्रोडक्ट खा लिए जिसमें कैफ़ीन होती है, तो फिर ये वो जो कैफ़ीन बॉडी में ज़्यादा जा चुकी है, जो कि एक तो ये टॉक्सिसिटी पैदा करती है. किससे बात कर रहे मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो? अबे ओ चुप हो जाओ. तो जो टॉक्सिसिटी पैदा करती है, तो टॉक्सिसिटी पैदा करती है कैफ़ीन वगैरह, तो उसको भी ये जो केमिकल है सफरीन जो उन वेजिटेबल से आता है वो उसको ख़त्म कर देता है. तो आपको चाहिए कि आप ये सब्ज़ियाँ खाओ ताकि आपकी बॉडी में से केमिकल और इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाए. तो आप डायबिटीज़ से भी बचे रहोगे और आप शुगर और डायबिटीज़ एक ही चीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचे रहोगे और आप डायबिटीज़ से भी बचे रहोगे और कैंसर से भी बचे रहोगे और भी बहुत सी बीमारियों से बचे रहोगे और आप फील हेल्दी और अच्छा करोगे. तो आपको वो जो सब्ज़ियाँ बताई हैं उनको खानी चाहिए. तो कुछ सब्ज़ियाँ सामने नज़र आ रही हैं, Cruciferous vegetables with sulforaphane तो अभी उन सब्ज़ियों के बारे में आगे भी बताएंगे क्या सब्ज़ियाँ वो. can even enhance the liver to the point of having an enhanced function of the जैसे अभी कि आपको दिखाया थोड़ी ब्रोकली नज़र आई थी, ब्रोकली भी बड़ी अच्छी सब्ज़ी है. help if there's fat in the liver. जैसे And with enough sulforaphane, let's say, for example, if you drank too much coffee, sulforaphane helps to quickly detoxify things like caffeine, drugs, chemicals, and even poisons. वो ये Eating caffeine cruciferous vegetables with sulforaphane can even enhance the broccoli. liver to the point of having an enhanced function of the liver even 2 weeks after where you stopped eating cruciferous vegetables. So some सो आप कुछ फिर वेजिटेबल खाते हैं ना,
तो आपके अंदर ये केमिकल आएगा जो जिसके बारे में डॉक्टर बता रहा है। तो वो बता रहा है कि अगर आप वो ये वेजिटेबल खाना भी बंद करें तो 2 हफ्ते तक ये आपकी बॉडी में रहेगा और आपकी बॉडी में से केमिकल जो बकवास हैं जैसे कि कैफ़ीन या फिर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो वजह बनते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हमारी बॉडी में पैदा करती है इन्फ्लेमेशन उसकी वजह बनती है, तो उससे हमें बचाता है। तो हमें ये वेजिटेबल खाना ज़रूरी है एवरी मतलब अच्छा जितना खा सकते हैं उतना अच्छा है। The effects हर हफ्ते खाएं। from eating cruciferous vegetables extend into the future, even if you don't eat them. That's pretty cool. Now, if you consume cruciferous तो ये इस वेजिटेबल का नाम है, जैसे कि ये हो गया ये कसरफीन वेजिटेबल, जिसके बारे में आपको पूरी एक लिस्ट आपको सामने बता दी है, ठीक है ना। तो वो लिस्ट में से जो वेजिटेबल है वो उन वेजिटेबल को कहते हैं ये कसरफीन वेजिटेबल। तो आप ये कसरफीन वेजिटेबल खाओगे तो आपकी जो जिनके बारे में पूरी आप ही पहले एक लिस्ट बताइए, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी में से टॉक्सिक और निकल जाएगा जो कि आपको डायबिटीज़ करने का वजह बनती है, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपकी डायबिटीज़ पीछे हो सकती है, ठीक है ना। तो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो आपको डायबिटीज़ है तो आपकी डायबिटीज़ पीछे हो सकती है, और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आपको डायबिटीज़ होने से बचा सकती है। तो ये वेजिटेबल खाना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में अभी पहले बताया है, ठीक है। ये वेजिटेबल, ठीक है ना। पूरा एक वीडियो का नोट बन रहा है यहाँ पर बजाय। ओके, थैंक यू। वापस शुरू करते हैं इस वीडियो को। sprouts, okay, you get a major enhancement in sulforaphane, especially when we're talking तो ये कुछ वेजिटेबल दिखाने हैं, पता नहीं कौन सी है, ब्रोकली वोकली है। about broccoli sprouts, radish ये रेडिश स्पॉट है, रेडिश स्पॉट खाओ। उससे पहले ब्रोकली स्पॉट दिखाई थी तस्वीर के अंदर, sprouts, and even mustard seed sprout. और ये मस्टर्ड सीड स्प्राउट है। तो मस्टर्ड सीड स्प्राउट भी आप खाओ, बड़ी फ़ायदेमंद है। ये कुछ सिर्फ फूड के अंदर आती है, कुछ सिर्फ वेजिटेबल के अंदर आती है, जो पहले बताइए। So sprouting is a very, very smart thing to do because all you need is just a little bit of those sprouts. जैसे कि ये सैलेड आप बना सकते हो स्प्राउट का। जैसे कि आपने ये सैलेड बनाया, साइड में सब चीज़ आती है, टमाटर भी डाल दिए, ये कैबेज भी डाल दिए, ठीक है ना। और जो आपको आगे फ्रूट बताएं, सब्जियां जो बताई हैं जैसे ब्रोकली हो गई वगैरह, वो आप डाल दो। तो फिर आप एक अच्छा फूड अपने लीवर के लिए और अपनी डायबिटीज से बचने के लिए आप बना सकते हो। Your salad to create a huge effect. You see, one of the key enzymes to activate sulforaphane is destroyed जैसे कि ब्रोकली उसने डाली हुई है। with heat. So if you overcook broccoli or especially cauliflower, you're not going to be able to get this full magnitude of sulforaphane unless it is destroyed. जैसे कि इसके अंदर ये डॉक्टर बता रहा है कि आप जो ये वेजिटेबल को आप कुक करके अगर खाओगे ना, ज़्यादा कुक करोगे तो उसका इफेक्ट जो है ना ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको ज़्यादा कुक नहीं करो, थोड़ा सा कुक करो और उसे कुक करके खा लो थोड़ा सा, या फिर बिना कुक करके खा लो, तो ज़्यादा आपकी बॉडी में इफेक्ट करेगा और आपकी बॉडी को फ़ायदा देगा, ठीक है। और धो के खाने का है, ठीक है। with heat. So if you overcook broccoli or especially cauliflower, you're not going to be able to get this full magnitude of sulforaphane. कैलीफ्लावर और ब्रोकली को ज़्यादा कुक नहीं करने का है, थोड़ा सा कुक करके खाने का, या फिर बिना कुक करके खाएंगे तो आपको पूरा इफेक्ट मिलेगा, आपकी बॉडी में फ़ायदा होगा। डायबिटीज़ से आप बचोगे, और डायबिटीज़ है तो उससे आप रिवर्स कर दोगे और आप अच्छी हेल्थ फील करोगे। Unless you at the same time add a little sprouts to your salad or a little bit of raw cruciferous. Or ये बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा मस्टर्ड भी डाल सकते हो अपने सैलेड के अंदर। if you added a little bit of mustard to your meal, because mustard has a lot of that enzyme, because it's a cruciferous, that will help मस्टर्ड भी एक कुछ फूड है, सो उसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम है, और वाटर एंजाइम है, जो वाटर केमिकल है जो आपको पहले बताया है। activate sulforaphane in the food that is cooked. So this is just सो अच्छा, ये जो मस्टर्ड है ये एक्टिवेट कर देता है उस सल्फोरिन केमिकल को जो कि उन वेजिटेबलों में होता है, जैसे ब्रोकली हो गई और जो आपको पहले वेजिटेबल बताई जो कि यारी वेजिटेबल है, ठीक है।
तो इन वेजिटेबलों के अंदर वो होता है क्या, इन वेजिटेबल के अंदर वहाँ केमिकल होता है, उस केमिकल को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड का मतलब है वही, क्या मस्टर्ड को क्या बोलते हैं उर्दू के अंदर, वो जो हल्दी, हाँ हल्दी जो होती है, ये आपकी हल्दी या मस्टर्ड आप बोल दो। तो ये आपका क्या एक्टिवेट कर देता है उस केमिकल को, जो केमिकल आपको डायबिटीज़ से बचाता है। मगर वो केमिकल कौन सी सब्जियों से आता है, उस केमिकल इन वो केमिकल इस क्लास की सब्जियों में से आता है। और ये जो क्लास की सब्जियाँ हैं, वो आपको पहले बता दी, जिसमें से एक ब्रोकली हो गई और भी बहुत से हो गए। आपको लिस्ट में एक स्क्रीनशॉट दे देंगे थोड़ी देर बाद इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो आप और आगे इस वीडियो को देखें। Another reason why when you have a salad, you want to add different things to it, like sprouts. And there's अच्छा, ये स्प्राउट वेजिटेबल है, ठीक है, ये स्प्राउट वेजिटेबल है, तो आप ये भी खाओ, ये भी अच्छी है, उस केमिकल को देती है जो कि केमिकल आपको डायबिटीज़ से बचाता है। many other phytonutrients in cruciferous vegetables that तो ये बहुत सारे न्यूट्रिशन है, ये बहुत सारे वेजिटेबल हैं जिनको ये फाइटो न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। जैसे कि लेमन हो गए, तो ये क्या खास, ये क्या है, अ, वो हो गया ना ये, अच्छा ये तो गाजर हो गई, और ये टमाटर हो गए, और ये में खास से वो हो गया जो हम खाते हैं, रेडिश, और ये ब्रोकलियाँ हो गई, इस पॉइंट पे ब्रोकलियाँ हो गई हैं ये, ठीक है। ये ब्रोकली हो गई है, तो ये पता क्या है, शिमला मिर्च हो गई है, और ये अपना में खास है वो है, वो जो हम कहते हैं ना कि वो ब्रेड बनाने के काम आता है, चुकंदर में खास है ये। हाँ, ये जो चुकंदर है ये, ठीक है, चुकंदर भी उस फूड के अंदर आता है, तो उनको खाएं। चुकंदर हो गया, ब्रोकली हो गई, ठीक है ना भाई। तो अभी सुने, support the liver function, which also have a lot to do with decreasing complications from diabetes and free radical damage and improving सो बता रहे हैं कि जो ये आप वेजिटेबल जो आपको बताई हैं, वो अगर आप खाते हो तो वो उस केमिकल को आपकी बॉडी के अंदर डालेगा, जो अच्छा आपके ये केमिकल है, वो आपको डायबिटीज़ से बचाएगा, और अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को पीछे कर देगा। और बहुत से फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में जो घूम रहे होते हैं, जो कि कैंसर करने का सबक बनते हैं, तो उस फ्री रेडिकल्स को भी ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो आपको कैंसर से भी बचा सकता है, और आपको बहुत सी दूसरी इन्फॉर्मेशन से जो बीमारी होती हैं उससे आपको बचा सकते हैं। तो आप ये आई सब्जियाँ खाएं जो कि इस वीडियो के अंदर दिखाई जा रही है। sensitivity to insulin and improving insulin resistance. तो ये एक चार्ट दिया है जिसके ईट टू मैनी कार्ब, अगर आप बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो आपका ब्लड शुगर हाई होगा। जिसके इसके अंदर बताया, अगर आप बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट खाते हो, ठीक है, टू ईट टू मैनी कार्ब, तो आपका ब्लड शुगर हाई होगा। अगर आपका ब्लड शुगर हाई होगा तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंसुलिन रिलीज़ होंगे, आपकी बॉडी में बहुत सारे इंसुलिन अगर रिलीज़ होंगे तो फिर आप क्या होगा, आप हंगर फटीग हो जाओगे। हंगर फटीग स्टोर फैट, मतलब आपकी बॉडी के आपको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगेगी, और आपकी बॉडी में आप फिर ज़्यादा खाना खाओगे तो आपकी बॉडी में फैट स्टोर होना शुरू हो जाएगा, आप मोटे से मोटे होना शुरू हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये एक साइकिल है जिससे बंदे को डायबिटीज़ होती है, और फिर बंदा इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर पैदा आ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का दूसरा नाम है डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ बोल दो या इंसुलिन रेजिस्टेंस बोल दो, बात एक ही है। तो आप होता क्या है, तो आप ईट टू मैनी कार्ब, एक बंदा है बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट मतलब वो होता है ना कि आप मूँगफली उठा के खाना शुरू कर दिए, या फिर चने ज़्यादा लेके खा रहा है,
तो खानी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा खाएं। मगर मोस्टली आप अगर वेजिटेबल खाते हो तो आप बहुत अच्छा लाइट लाइट फील करोगे। मैंने भी अभी कुछ दिनों पहले मेरा हाई बी प्रेशर हो गया था, जिसका मैंने थोड़ा वेजिटेबल खाए और वॉक की, मगर वॉक में तेज़ नहीं की, मैं वॉक से हल्के हल्के वॉक चल चल के वॉक किए, सिर्फ जितनी मेरी बॉडी बोल सकती थी उतना मैं वॉक की है। ठीक है, बंदा 10 मिनट भी वॉक कर सकता है, 15 मिनट भी वॉक कर सकता है, 20 मिनट भी कर सकता है। मगर मेरे हिसाब से जैसी मेरी एज है, मैंने अपने 30 मिनट से लेके या फिर 1 घंटा 30 मिनट तक वॉक की, मतलब 90 मिनट तक मैं वॉक की। और वॉक करके फिर मेरी और अब मैं एवरीडे या फिर हफ्ते में 5 दिन में 1 घंटा 30 मिनट या उससे थोड़ा कम मैं वॉक करने का सोच रहा हूँ एवरीडे सिर्फ। और अच्छा, वॉक कैसे करनी है? वॉक में कोई ये नहीं कि आप अगर वॉक हो तो स्पीड से चलो, स्पीड से नहीं चलो। अगर आप स्पीड से चलोगे तो आपकी बॉडी के अंदर टेंशन और स्ट्रेस पैदा होगी। ठीक है, टेंशन और स्ट्रेस से भी आपकी बॉडी के अंदर ना कॉर्टिसोल पैदा हार्मोन निकलते हैं, जिससे आपकी बॉडी का ब्लड वेसल के जो साइज़ है ना, वो ब्लड वेसल के और डायमीटर है वो थोड़ा सा नैरो हो आता है। ठीक है, अगर बड़ा है तो थोड़ा जैसी कॉर्टिसोल निकलेंगे आपकी ब्लड वेसल का डायमीटर नैरो हो जाएगा। नैरो होने से ब्लड प्रेशर अगर आपको हाई है तो और भी हाई हो जाएगा, तो फिर उससे बड़ा ख़राब है। ठीक है, तो आपका क्या है, हल्के वॉक करोगे तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नहीं निकलेंगे, तो और हल्की वॉक करने से कॉर्टिसोल ख़त्म हो जाते हैं। तो उससे आपका वो जो ब्लड प्रेशर का साइज़ अगर नैरो है कॉर्टिसोल की वजह से, तो जब आप हल्की वॉक करोगे तो आपकी बॉडी ब्लड में से कॉर्टिसोल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपके ब्लड प्रेशर का साइज़ वापस नॉर्मल साइज़ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर में रिलीफ मिलेगा एक हद तक। मगर आपको अगर ब्लड प्रेशर फ़ौरन ही आप जाके वॉक नहीं शुरू करो, आप पहले सबसे पहले आप सब्ज़ी लाओ, सब्जियों को खाओ। ठीक है, और मोस्टली सब्जियां खाओ, केले खाओ, आम खाओ। आम अच्छा वो वाली चीज़ फ्रूट खाओ जिसमें पोटेशियम होती है, ताकि वो पोटेशियम आपके हार्ट को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दे। ब्लड में जब ज़्यादा पोटेशियम होते हैं ना, नहीं हम लोग इतना गोश्त वोश्त खाते हैं। एक गोश्त के मैं पहले बकरा खाया था, तो मैंने बकरा जब खाया तो बकरे की टांग खाई और बकरे का शोल्डर। तो सुना है कि बकरे के 1 मिलीग्राम के अंदर 25 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, हाँ, 1 ग्राम गोश्त के अंदर ना, बकरे के 1 ग्राम गोश्त के अंदर 25 मिलीग्राम सोडियम होती है। और मैंने यूट्यूब पे देखा था कि इंसान को एक दिन के अंदर 1500 मिलीग्राम सोडियम चाहिए होती है, मैक्स मिनिमम या फिर मैक्सिमम। ठीक है, और 1 ग्राम गोश्त के अंदर बकरे के 25 मिलीग्राम होती है। और हम लोग 1 ग्राम नहीं खाते हैं गोश्त बकरे का, हम लोग काफ़ी ग्राम खा जाते हैं। अगर एक प्लेट में डाल रहे हैं गोश्त, या फिर 1-2 किलो तो खा ही जाते हैं। 1 किलो के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो बताओ फिर कितना सोडियम हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है। जब सोडियम बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी, और अगर हम फिर वॉक वॉक नहीं करेंगे, वो कोई एक्सरसाइज नहीं करें, जैसे कि कोई जवान बन रहा है 40 साल से कम, या फिर वो जिम विम जाता है, एक्सरसाइज जैसे मैं पहले करता था 8-8 घंटे, और उस टाइम पे मैं गोश्त भी मतलब 2 किलो गाय का गोश्त खा जाता था। तो उस टाइम पे मुझे कोई फील नहीं होता था, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मैं 8-8 घंटे जिम के अंदर रहता था, और जिम में रह के मैं एक्सरसाइज करा होता था हर वक्त। तो उससे और फिर वॉकिंग वॉकिंग, तो 8 घंटे 10 घंटे की जो मेरी एक्टिविटी थी, तो उसकी वजह से जो गोश्त में जो सोडियम था वो मुझ पर इतना इफेक्ट उसने नहीं किया। मगर हाँ, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग अब इतनी कम कर दी, और कम करने का भी अगर मैं गोश्त वोश्त खा रहा हूँ ज़्यादा, तो जैसे बकरे का गोश्त की पूरी टांग लेके खाई, ठीक है, और फिर बकरे का शोल्डर लेके पूरा खा रहा हूँ, मगर एक्टिविटी नहीं कर रहा, घर में भी बैठा हूँ, हल्का फुल्का जिम चले गए तो बस 1 घंटा एक्सरसाइज कर ली या 2 घंटा कर ली मुश्किल से हल्की फुल्की, मगर खा रहा हूँ। तो या फिर जॉब जब तक करा था जब तक सही था, जब जॉब छोड़ दी तो उसके बाद फिर 8 घंटे की जो जॉब थी जिसमें मैं रेगुलर काम था, तो उसके बाद छोड़ दी। तो फिर मेरा उसके बाद भी जब मैंने गोश्त खाया तो फिर मेरा बॉडी के अंदर सोडियम बढ़ गया। तो सोडियम बढ़ने से मेरे गुस्सा आ रहा था, पता नहीं मैं एक्सरसाइज कर रहा था, तो एक्सरसाइज करते हुए भी मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई था। ठीक है, जो भी, और घर में भी मैं गुस्सा आ रहा है, राई रह रहा हूँ, फिर जो भी है, तो उससे क्या होता मैं ब्लड प्रेशर हाई नज़र आ रहा था। तो क्योंकि मेरी ब्लड के अंदर हाई अमाउंट ऑफ सोडियम आ गया था, और सोडियम खाने में नमक डालने से नहीं आता, सोडियम बकरे के गोश्त के अंदर होता है या गाय के गोश्त के अंदर होता है। तो उससे कहते हैं गाय या बकरा नहीं खाना चाहिए, जैसे मुर्गी खानी चाहिए, मुर्गी की टांगे, या फिर ये बस थोड़ा बहुत गोश्त हफ्ते में मैं तो कहता हूँ 1 दफ़ा या 2 दफ़ा गोश्त खा लो काफ़ी है, वो भी मुर्गी का,
बकरे का नहीं, ना गाय का, ठीक है। बकरे गाय का मैंने देखा बहुत बड़े बॉडी बिल्डर भी मुर्गी का गोश्त खाते हैं अपने साइज़ बढ़ाने के लिए, और वो सिर्फ बकरा बकरा या गाय थोड़ा सा अमाउंट का लेते हैं, थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं, वो भी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, जब उनको बहुत हैवी वेट उठाना पड़ता है। और मैं जो पागल हूँ, मैंने तो भाई पूरा का पूरी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट थी बॉडी में, जब मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था उस टाइम पे मैं गाय के गोश्त से कंप्लीट की थी, या फिर बकरे का गोश्त से करता हूँ। ये गलत चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए। आपको मुर्गी के गोश्त से अपने बॉडी में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उनके लिए चाहिए कि मुर्गी के गोश्त से आप अपने बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करो, और गाय के गोश्त या बकरे के गोश्त से सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए आप खाओ, थोड़ा बहुत गाय या बकरे का गोश्त खाओ, जो कि स्ट्रेंथ आपको देगा, तो जिससे आप हैवी वेट लिफ्टिंग कर सकोगे आराम से। अदरवाइज प्रोटीन बॉडी को देने के लिए आप मुर्गी का सीना या फिर मुर्गी की टांगें खाओ, जिससे आपकी बॉडी में प्रोटीन आएगी, जो कि आप 1 ग्राम 1 पाउंड चिकन ब्रेस्ट के अंदर, चिकन के सीने के 1 पाउंड चिकन के सीने के अंदर 117 ग्राम प्रोटीन होती है, और बकरे के शोल्डर के अंदर 1 ग्राम में, वो 1 पाउंड के अंदर में खास से ये कोई 96 ग्राम प्रोटीन होती है, जो भी, ठीक है ना। और गाय के अंडरकट के अंदर 1 पाउंड के अंदर 93 ग्राम प्रोटीन होती है, जो भी है। मुर्गी में फिर भी ज़्यादा है, मगर बकरे का और गाय का गोश्त खा के आपके अंदर स्ट्रेंथ फीस ज़्यादा होगी, आप हैवी लिफ्टिंग आराम से कर सकोगे। मगर वो जिम में जाके, ये उनके लिए जो कि 40 ईयर्स से कम के हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जिम में जाके फ़ौरन ही हैवी वेट लिफ्टिंग करना, चाहे आप कितने ताकतवर हो या ना हो, तो अच्छी बात नहीं है। और जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होती है जिससे आपके मसल बढ़ते हैं, वो फ़ौरन ही नहीं करनी चाहिए। आपको एक्सरसाइज करने उस लेवल पे आने से पहले आपको पहले लो लेवल की एक्सरसाइज करनी होती हैं, जो कि आपकी बॉडी को रेडी करती हैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने के लिए, जिसमें रेपिटेशन कम मैक्सिमम रेपिटेशन 10 लगते हैं, 10 या 12, और कम से कम रेपिटेशन 6 या 4 लगते हैं। और उसमें ये होता है कि हल्का वेट होता है, हल्के लाइट वेट होता है। लाइट वेट के अंदर बस, जैसे कि पैर साइड के अंदर 10 रेपिटेशन लगा रहा है, तो पैर साइड के अंदर 10 रेपिटेशन तो आपने लगाए, मगर उसमें आपने वेट इतना डाला हुआ कि आपको लगाने टोटल 12 रेपिटेशन, ठीक है, मगर आपने वेट इतना डाल दिया कि आप सिर्फ 10 रेपिटेशन लगाओगे, तो आप 10 रेपिटेशन का आप थक गए, ठीक है। थक देंगे, फिर आप थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर सांस ले लो, और सांस मगर वेट नहीं रखने का, वेट उसी जगह पर रखने का, तो सांस लेने का फिर आपने 2 रेपिटेशन और इजी तरीके से लगा, नहीं, थोड़ा बिना झटके के लगा ली, और लगाने का फिर वो आपकी पहला सेट काउंट होगा। तो इस तरीके से, अच्छा, ये फ़ौरन ही नहीं करना है। शुरू में आपको लाइट वेट एक्सरसाइज करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये आखिर के जो 2 रेपिटेशन होते हैं फोर्स रेपिटेशन होते हैं, जो कि पेन बैरियर में से या फिर से निकलना होता है, जो जिससे साइज़ बढ़ता है। और ये फ़ौरन ही नहीं करना, पहले आपको लाइट वेट एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपको फील अच्छा करे बॉडी, जैसे जैसे बॉडी अच्छा फील करे ना, वैसे वैसे चलने चाहिए। आप उसको ज़्यादा हाई लेवल पुश मत करो बिगिनिंग स्टेज पे, ठीक है। तो ये बिगिनिंग स्टेज की एक्सरसाइज है, 3 4 5 6 महीने की। जब आप रेगुलर करोगे तो फिर 6 महीने की एक्सरसाइज मानी जाएगी। अगर आप रेगुलर नहीं करो तो फिर 6 महीने की एक्सरसाइज नहीं मानी जाएगी, आपको रेगुलर करनी होगी। तो उसके बाद फिर जब आपने 6 महीने रेगुलर एक्सरसाइज की है इस लेवल की, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा अपने आप की रनिंग वनिंग करो, अपने आप को फिट करो, और रनिंग भी 3 3 घंटे की रनिंग पर डे करो। तो फिर उसका फिर बंदा इस लेवल पे आएगा कि बंदा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकेगा। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट फिर जब आप जाओगे तो फिर उसमें फिर जैसे कि मेरे हिसाब की जो एक्सरसाइज हैं, वो तो फिर मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ही करता था पहले। जैसे 15 पहले साइड के अंदर 30 रेपिटेशन लगाया, उसके बाद फिर इतना वेट लिया कि मैं 30 रेपिटेशन लगाऊँ, मगर मैं 32 रेपिटेशन लगाता था, क्योंकि आखिर के 2 रेपिटेशन फोर्स रेपिटेशन होते हैं, जिसमें से साइज भरने का होता है, पेन बैरियर में से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। पेन बैरियर तो खुद ही आ जाता है। अच्छा, तो आपने जैसे पहले 30 रेपिटेशन लगाए, तो आपका हाथ थक गया, बाइसेप थक गया, जिस मसल की भी आप एक्सरसाइज करो, ठीक है, वो मसल थक गया, मगर आपने रोक के
अच्छा ये एक्सरसाइज चेस्ट में नहीं करनी, क्योंकि चेस्ट में करोगे आपके सीने के ऊपर लगेगा, आपके पीछे कोई वो हो, ठीक है, हेल्पर, तो आपका जब मसल थक जाएगा तो उसके थकने का फिर आप थोड़ी देर रेस्ट लेके 2 रेपिटेशन और लगा लो। मगर रेस्ट लेने का मतलब ये नहीं कि आपने वेट उठा के रख दिया, आपके हाथ में वेट हो, रोक के रखो 2 मिनट, 2 लंबी सांसें लो, थोड़ी देर रुको, फिर इसके बाद वापस से 2 रेपिटेशन और लगा लो। तो ये लाइट वेट सी होती है। पहले साइड में तो 30 रेपिटेशन, फिर उसका 25, फिर 20, फिर 15, फिर 12, फिर 10, फिर 8, ठीक है। ये 8 तक है, 8 से कम नहीं जाना, ठीक है। तो इसी के रेपिटेशन लगाया, जिसके आखिरी सेट के अंदर 8 रेपिटेशन लगाए, और 8 रेपिटेशन लगाने के बाद 8 रेपिटेशन लगाने के बाद 2 सांसें ली, 2 सांसें लेने के बाद जब रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने के बाद फिर 1 या 2 रेपिटेशन और लगा लिए, तो इससे आपका साइज बढ़ेगा। तो ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, जो जैसे मैं करता था। मगर अभी जैसे यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ, एक नया बंदा है कैफ फिटनेस, ठीक है ना, तो वो भी अलग तरीके से सिखा रहा है। उसके अंदर भी वो शू में पहले 2 सेट, तो पहले शू में वार्म वार्म के बाद 2 सेट तो वो इसी लगाते हैं, जिसमें 15 30 रेपिटेशन या 25 रेपिटेशन के लगाते हैं, फिर 18 रेपिटेशन के लगाते हैं। फिर इसके बाद फिर वो अपनी नॉर्मल, फिर वो 18 के बाद 15 का नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट 12 पे आ जाते हैं, और 12 पे ही रह जाते हैं। तो फिर 3 सेट लगाते हैं 12 12 रेपिटेशन के, ठीक है। तो उनका अलग है, मेरा अलग है। मैं जो है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करने की स्ट्रेस ऑन द मसल, इनका जो है कैफ का, वो शुरू में वार्म करिए, फिर डायरेक्टली हाई लेवल पे स्ट्रेस पे आ जाते हैं। मगर इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी अगर वीक है तो फिर आपको फिर सिग्नल नहीं देगी कि भैया आपको किसी के साथ चलना चाहिए। तो आपका बॉडी से भी आपका कनेक्शन होना चाहिए कि आपकी बॉडी कितना चाह रही है कि कैसी एक्सरसाइज करे। आप ज़्यादा ओवरलोड कर लोगे, सही है, आपका मसल तो बढ़ेगा, मगर आपको अगर आपकी वार्ड लगे तो फिर जिम में फिर कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपकी हेल्प कर सके। तो अपने ऊपर स्ट्रेस दो, मगर इसी स्ट्रेस दो जो जिसको आप कंट्रोल कर सको, और जो आपके लिए भारी ना पड़ जाए बस, ठीक है। तो हर किसी का अपना स्टाइल होता है बॉडी बिल्डिंग करने का, तो ऐसा स्टाइल लो जो कि अच्छा हो और सुकून से आपको लेकर चले। चाहे इस वीडियो के अंदर तो हम लोग सिर्फ इंसुलिन और इंसुलिन से जो शुगर डायबिटीज़ होती है उससे बचने का, और या फिर फैटी लिवर से बचने का क्या है जो कि डॉक्टर वर्क बता रहा है, तो उसके हिसाब से हम समझ रहे हैं। तो मैं थोड़ी बॉडी बिल्डिंग के बारे में बता दिया। तो ये सब यूँ बताया क्योंकि हम लोग जो बॉडी बिल्डर होते हैं, या फिर जो भी पहलवान शुरू ने बचपन से बॉडी बिल्डिंग शुरू की होती है, तो शुरू में की तो उनकी एज है, टीन एज से शुरू करती हैं बॉडी बिल्डिंग, तो टीन एज और फिर उसके बाद 20 तो गुजर जाती है। मगर फिर बाद में जब इनकी एज बड़ी होने लगती है तो फिर इनके ऊपर एक प्रॉब्लम आना शुरू होती है। वो प्रॉब्लम ये आती है कि तो ये बॉडी बिल्डिंग करना छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जिम वो जॉब वॉब का मसला होता है, और कैरियर लाइफ ये भी कोई आदमी सोचते हैं बजाय शुरू में सोचने के। तो फिर एक तरीके की स्ट्रेस दिमाग पे होती है, और ऊपर से काम, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आजकल फ़ोन आ चुका है, लोग घर में बैठ के यूट्यूब पे ही बैठे रहते हैं, तो कौन सा जिम जाते हैं, या कौन सी वॉक, एटलीस्ट वॉक करना कौन सा बाहर जाते हैं। तो जिससे फिर बंदा फिर खा भी फिर वैसे रहा होता है कि बकड़ रहा है कि खा लिया, तो उससे फिर बंदे का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, फिर इंसुलिन और डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर होने का ख़तरा होता है। मुझे भी थोड़े दिनों पहले हाई ब्लड प्रेशर हुआ था, तो उससे बचने के लिए हाई ब्लड प्रेशर में थोड़ा गुस्सा कर जाता है, जिसके वजह से में हाई ब्लड प्रेशर होता नहीं, तो कोई नेचुरली में हाई ब्लड प्रेशर नहीं हुआ था, गुस्सा किसी वजह से गुस्सा हो गया था, जिससे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। मगर थोड़ा अनकंट्रोल हो गया था, मगर उसको मैं सही किया, लंबी लंबी सांसें लेके, नाक से लंबी सांस अंदर ली 4 सेकंड तक, 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 सेकंड तक मैं लंबी लंबी सांसें ली, तो जैसे मैं यूँ सांस ले रहा हूँ, तो 4 सेकंड में सांस अंदर लेनी है पूरे आपका, और फिर 4 सेकंड में पूरी सांस आपको बाहर निकालनी है। तो इस तरीके से आप करोगे, आपका गुस्सा और जो हाई ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा लो होगा। फिर ये पहला स्टेप था जिससे मैंने थोड़ा अपना हाई ब्लड प्रेशर कम किया। उसके बाद फिर उसके बाद चकोतरा खाया। चकोतरा बहुत अच्छी चीज़ है, लेमन चकोतरा। चकोतरा उनके लिए अच्छा है जो जिनको डायबिटीज़ और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग चकोतरा खा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो लोग
डायबिटीज़ वायबिटीज़ के पेशेंट हैं या हार्ट के, वो अलग से गोलियां खाते हैं, तो उनके लिए ये चकोतरा अलाउ नहीं है। मगर कीवी आप खा सकते हो, कीवी सलाद के अंदर डाल के कीवी खाओ, टमाटर डाल के खाओ, और कीवी हो गई, टमाटर हो गया, कैबेज हो गई, तो ये सब फूड अच्छे हैं जो कि आपकी वो बादाम हो गए, और तो ये सब फूड अच्छे हैं जो कि आपकी बॉडी को फिट करते हैं। तो आपको ये करनी चाहिए। हम इंसुलिन इस पे वीडियो पे बात कर रहे हैं। तो अच्छा, वॉक गेस्ट्रो हाई ब्लड प्रेशर को अच्छा करने के लिए और दूसरी चीज़ है कि आप वॉक करो, मगर वॉक स्पीड से नहीं करनी है, वॉक करनी है स्लो स्लो, ठीक है, नहीं स्लो भी नहीं करनी, बस जितने बॉडी बोले आराम से वैसे वॉक करनी है। और फिर हमको ज़्यादा हाई स्पीड से नहीं लेकर आना। तो हाई स्पीड से लेकर आने से हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस पैदा होगी, स्ट्रेस से कॉर्टिसोल निकलेगा, जिससे आपकी नसें पतली हो आती हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए। हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल जब भी होगा जब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला पहला स्टेप है कि बॉडी में से स्ट्रेस खत्म हो जाए। ये मतलब कॉर्टिसोल, स्ट्रेस का जब भी नाम लूँगा उसका मतलब है कॉर्टिसोल खत्म हो जाएगा। कॉर्टिसोल जब भी खत्म होगा, आज आप रिलैक्स रिलैक्स रहोगे, रिलैक्स जब भी रहोगे, जब आप नॉर्मल रिलैक्स बैठे हो, ठीक है, तो ठंडा होके, और या फिर आप वॉक करो तो या हल्की हल्की वॉक करो, तो ये है। और जिम नहीं जाने का, जिम नहीं जाने का, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो घर में बैठो, अच्छी चीज़ें खाओ, चकोतरे, मौसमियाँ और सलाद वगैरह, और फिर वॉक करो, एवरीडे वॉक करो, 30 मिनट की भी वॉक कर सकते हो, 15 मिनट की भी वॉक कर सकते हो, से लेके मैं तो 90 मिनट की वॉक करता हूँ। तो उसमें वॉक करो तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जब आप सही होगे फिर आप वापस जिम जा सकते हो, फिर सब कर सकते हो। मगर आप इस वीडियो पे आते हैं कि ये सारी मैं बातें बतानी थी, क्योंकि इन बातों से मैं खुद ने देखा कि मैं अपना ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया। मैं बड़ा ख़तरनाक ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, गुस्सा ज़्यादा आ गया था, जिससे ब्लड प्रेशर में फ़र्स्ट टाइम कंट्रोल नहीं कर सका था। मगर ये सांसें लेके मैं कंट्रोल किया। शुगर को किसी ने मुझे याद याद है कि सांस ले रहे हैं, तो मैं तो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। चलो अब इस वीडियो को देखते हैं, क्या क्या हो गया। इसको बंद करो। आपने देख चुके हो ये किस तरीके से साइकिल बनती है। जैसे पहले आप सबसे पहले टू मैनी कार्बोहाइड्रेट, हम बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं, ठीक है, या फिर चावल मूंगफली हमने ज़्यादा खा ली, या फिर हमने कुछ भी चीज़ ज़्यादा खा ली जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, तो उससे हमारी ब्लड के अंदर शुगर ज़्यादा हो जाती है। जब ब्लड के अंदर शुगर या ग्लूकोज ज़्यादा होती है, फिर हमारी बॉडी के अंदर उस ग्लूकोज को सेल के अंदर डालने के लिए हमारी ग्लैंड में से हमारे इंसुलिन ऑफ लिंगर हैंड जो ग्लैंड है, उसमें से इंसुलिन हार्मोन बाहर निकलता है। इंसुलिन हार्मोन जो है ये आपका ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा है, ये जब ज़्यादा निकलता है तो फिर आप फील हंगर करते हो, आपको और भूख लगती है, तो आप फिर और खाते हो कार्बोहाइड्रेट, मूंगफली हो गई और कुछ भी फैट। तो फिर जब होता है फिर आपको ये सारा कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में एज अ फैट स्टोर होने लगता है, और फिर वो फैट बॉडी में भी स्टोर होता है, वो नसों के अंदर भी जमा होने लगता है। तो फिर जो नसों में होता है फिर वो ब्लॉकेज पैदा करता है। तो इसलिए आपको कीवी खानी चाहिए, कीवी आपकी वो ब्लॉकेज को खोलती है। और थोड़ा सा लेमन का जूस हो, ये सब पीना चाहिए ताकि वो आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाए। और मैं तो चकोतरा खाता हूँ, और ये सब चीज़ें। और वीडियो को देखते हैं कि वीडियो में क्या बोल रहा है, ठीक है। And just supporting your blood sugars. Personally, I consume a lot from eating cruciferous vegetables extend into the future, even if you don't eat them. That's pretty cool. Now, if you consume cruciferous sprouts, okay, you get a major enhancement in sulforaphane, especially when we're talking about broccoli sprouts, radish sprouts, and even mustard seed sprouts. So sprouting is a very, very smart thing to do because all you need is just a little bit of those sprouts on your salad to create a huge effect. You see, one of the key enzymes. सो अभी इन्होंने बताया कि स्पॉट है, स्पॉट को आप लेके खा के वो डालोगे, रेड स्पॉट होगा और दूसरे स्पॉट होगा, तो फिर साइड में डालोगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। ये कुछ फूड की एक वो हैं
ये सब एक कुछ वेजिटेबल की वो हैं टाइप। To activate sulforaphane is destroyed with heat. So if you सो ये जो फ्रूट जैसे ब्रोकली हो गई और जितने भी आपको बताएं पहले, वो आप वेजिटेबल का जो सैलेड बना के खा रहे हो, अगर आप उसको ज़्यादा गर्म हीट के अंदर चूल्हे के ऊपर ज़्यादा गर्म हीट के ऊपर उसे पकाओगे, तो उसके अंदर जो केमिकल है जो कि आपकी बॉडी में से इंसुलिन रेजिस्टेंस को आपको शुगर होने से बचा रहा है और आपको आपके लीवर को साफ़ कर रहा है। ये बहुत अच्छा जो केमिकल है, ये केमिकल ख़त्म हो सकता है या तबाह हो सकता है अगर इन सब्जियों को ज़्यादा गर्म हीट पे पकाओगे। तो आप थोड़ी सी हीट पे करके पका लो, और अगर इसमें ऑयल डालना है तो ऑलिव ऑयल डालो, कोई दूसरा ऑयल नहीं डालो, तो उससे आपके लिए बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। और ऑलिव ऑयल ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑयल, ठीक है। तो आप ऑलिव ऑयल में खाना खाओ और दूसरे ऑयलों को छोड़ दो। overcook broccoli or especially cauliflower, you're not going to be able to get this full magnitude of sulforaphane unless you at the same time add a little sprouts to your salad or a little bit of raw cruciferous, or if you added a little bit of mustard to your meal, because बोल रहे हैं कि इनको सिर्फ फूड को आप ज़्यादा गर्म हीट में करके देते हो तो आपको बॉडी में ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, जब तक आप उसमें हल्दी ना डाल दो या फिर दूसरी चीज़ें ना डाल दो, ये बता रहा है। mustard has a lot of that enzyme because it's a cruciferous that will help activate sulforaphane in the food तो मस्टर्ड जो है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं सल्फीन को और उस केमिकल को। that is cooked. So this is just another reason why when you have a salad, you want to add different things to it, like sprouts. And there's many other और ये स्प्राउट होगा। phytonutrients in cruciferous vegetables that support the liver function, which also have a lot to do with decreasing complications from diabetes and free radical damage and improving. तो ये जो केमिकल है जो इन फूड में से निकलता है, ये आपको इम्प्रूव करता, आपकी डायबिटीज़ से आपको बचाएगा या आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स कर देगा। आपकी बॉडी के अंदर इम्प्रूव सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, मतलब जो सेंसिटिविटी टू इंसुलिन है आपको वो इम्प्रूव करेगा। आप शुगर से बस पीछे होने लगोगे, आपकी शुगर जो है आपकी अच्छी होने लगेगी और आपको डायबिटीज़ जो है आपकी अच्छी होने लगेगी और आप अच्छा फील करने लगोगे। Sensitivity to insulin and improving insulin resistance and just supporting your blood sugars. Personally, I consume a lot of arugula in my salads. So that is just loaded with those enzymes to activate sulforaphane. I also do a lot तो ये जो डॉक्टर बर्ग है, ये डॉक्टर बर्ग बोलता है कि लुकड़े कुछ ऐड करता है और ये कैबेज ऐड करता है अपनी डाइट के अंदर। of raw cabbage, like अच्छा, ये रॉ कैबेज ऐड करता है अपनी डाइट के अंदर। coleslaw, for example, and sauerkraut, which is just loaded with the enzymes ये सारा कार्ड भी ऐड करता है, पता नहीं ये सारा कार्ड क्या चीज़ है। that activate sulforaphane. So, out of all the things you can eat, cruciferous is at the top of the list. Now, सो क्रुसिफर टॉप ऑफ द लिस्ट है, और ये कुछ अनियन हो गई और ये गार्लिक हो गए और ये अवोकाडो ये इसमें दिखा रहे हैं और कुछ टमाटर दिखा रहे हैं। अवोकाडो, अनियन और गार्लिक और लहसुन हो गया, प्याज हो गई और टमाटर हो गए और अवोकाडो हो गया इसके अंदर। the number 2 item is garlic. अच्छा, Now, इसके अंदर गार्लिक और लहसुन दिखा रहे हैं, गार्लिक। garlic is something that is loaded with sulfur, and sulfur जैसे कि आपका ये बता रहे हैं कि अब ये गार्लिक के बारे में बात कर रहे हैं अभी, और ये बोल रहे हैं गार्लिक के अंदर लो सल्फ़र होती है, और सल्फ़र अभी उसके बारे में और बताएंगे भी क्या है। is a wonderful thing to detoxify the liver. And अच्छा, बोल रहे हैं कि जो लो सल्फ़र होता है ये अच्छी चीज़ होती है आपके। लो सल्फ़र डाइट जो होती है ना उसकी वो एक तरीके से अच्छी होती है, जो कि आपके मतलब ये गार्लिक जो है, ठीक है, ये अच्छी चीज़ होती है कि आपके लीवर को डिटॉक्सिफाइड करे, आपके लीवर में से टॉक्सिक केमिकल निकाल के बाहर फेंक दे, ठीक है ना। तो मतलब ब्लड वो यूरिन के जरिए बाहर निकालते हैं टॉक्सिक केमिकल आपके लीवर में से निकाल के, तो आपका लीवर अच्छा हेल्दी फील करता है also act गार्लिक खाने से। as a natural antibiotic. और ये गार्लिक एक तरह से नेचुरल एंटीबायोटिक होती है जो आपकी बॉडी में से
बॉडी को अच्छा करती है। So it's very, very antibacterial, antifungal, तो आपकी बॉडी के अंदर एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल से आपको बचाती है, antiviral. और एंटीवायरस से भी बचाती है। And garlic is really good for stripping off fat from your liver. और गार्लिक वही ज़बरदस्त है कि वो निकाल ही देती है फैट जो आपके लीवर के ऊपर लगा हुआ है, उसमें से आपके लीवर में से फैट निकाल के बाहर फेंक देती है। तो गार्लिक बड़ी ज़बरदस्त है। आपको एक लिमिटेड अमाउंट में जो नुस्खा है उसके हिसाब से आप अपने खाने में ज़रूर गार्लिक या लहसुन डाला करें। And garlic also has a lot of vitamin B1 as well. गार्लिक के अंदर विटामिन B1 भी होता है। I mean, garlic is just one of those superfoods. It's anti-inflammatory. It's a very powerful antioxidant. गार्लिक उन सुपर फूड के अंदर आता है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेशन होती है, एंटी दूसरी चीज़ें होती हैं। इन्फ्लेमेशन से मतलब इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन और डायबिटीज़ पैदा करती है, इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के अंदर कैंसर पैदा करती है। तो गार्लिक इन सब चीज़ों से बचाती है। And it has huge anti-cancer properties. All right, the next one for the liver is turmeric. Okay. Now the active. ये टर्मरिक जो है, ये टर्मरिक का हम लोग देसी लैंग्वेज में बोलते हैं इस टर्मरिक को हल्दी। ये नंबर 3 फूड है इस लिस्ट के अंदर। तो हल्दी के बारे में बात करें। Nutrient in turmeric is curcumin. Curcumin is just a powerhouse in reducing inflammation. There is a. तो टर्मरिक जो है होती है ये कम कर देती है इन्फ्लेमेशन, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन पैदा होती है जिस जिस जो कि कॉज करती है कैंसर या डायबिटीज़, उससे हमें बचाती है हल्दी। Someone recently who had lifelong headaches, okay, and they had. वो लोग जिनके दिमाग में बहुत पेन रहता है, काफ़ी लंबे टाइम से हेडेक रहती है, उनके लिए हल्दी अच्छी है। Take copious amounts of Tylenol for years and years and years. जिन लोगों के दिमाग में हेडेक रहती है या पेन रहता है, वो बहुत लंबे सालों से जो कि टाइलेनॉल खा रहे हैं अपनी दिमाग के पेन की या हेडेक को सही करने के लिए, उनके ये बोला टर्मरिक या हल्दी अच्छी चीज़ है। Their liver has been going downhill. And so one of the key things that she did is started taking turmeric on a daily basis. And so बोला कि टर्मरिक या हल्दी आप डेली बेसिस में खाओ, जिससे आपकी दिमाग का पेन या हेडेक सही हो सकती है। not only did her headaches go away, but now going in the future, not having to take Tylenol, her liver is going to do much, much better. Now, one. वो बोल रहे हैं कि आप जब टाइलेनॉल नहीं खाओगे तो आपका लीवर और अच्छा हेल्दी फील करेगा, क्योंकि आप जब इस हेडेक को सही करने की जब आप टाइलेनॉल खाते हो तो उससे आपका लीवर ख़राब होता है। तो आप अपने लीवर को बचाओ, टाइलेनॉल ना खाओ और हल्दी के ज़रिए अपना हेडेक को सही कर सकते हो। तो टाइलेनॉल ख़राब है हेल्दी के लिए, वो लीवर के लिए टाइलेनॉल ख़राब होती है। और इस डायग्राम के अंदर ये लीवर है, ये हमारा लीवर है, ठीक है ना। तो I want to say about the liver is that the liver is rugged, it's tough, it can bounce back unless it's completely destroyed. It only needs a little bit of itself to function. And a lot of people have destroyed a good portion of their livers. And they're. और ये बोल रहे हैं जो हमारा लीवर होता है, अगर वो डैमेज सपोज़ को 50% भी अगर डैमेज हो जाए ना, तो अगर हम उसको वापस से रिवर्स करें, वापस से अच्छे खाने खाएं, तो वापस से वो सही, वापस से पूरा 100% सही हो जाता है खुद ब खुद। मगर अगर वो 100% ख़राब हो चुका है फिर उसके बाद फिर वापस सही नहीं हो सकता। तो आपको लीवर को सही करने के लिए कि आप ख़राब चीज़ें छोड़ दो, अच्छी चीज़ें खाओ और अच्छी चीज़ों को खाते रहो, ताकि वो लीवर आपका हेल्दी हो जाए वापस से, उससे पहले कि वो पूरा ख़राब हो जाए, ठीक है। able to exist and survive, which is quite amazing. But out of all the organs, the liver is the most robust. It can take a beating and it can bounce back. Now, turmeric can also detoxify heavy metals. ये बोला जो टर्मरिक है, जो कि हल्दी है, वो डिटॉक्सिफाई मतलब निकाल देता है हमारी बॉडी में से उन हैवी मेटलों को जो कि हमारी बॉडी में खराबी करती है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कौन सा लेड हो गया, like lead, mercury, cadmium, and even arsenic. Turmeric. तो जो हल्दी होती है या टर्मरिक जिसको बोल रहे हैं, वो हमारी बॉडी में से हैवी मेटल निकालता है। जैसे कि पहला लेड हो गया, दूसरा मर्करी हो गई, कैडमियम हो गया और ये आर्सेनाइड हो गया, इसको निकाल देता है हमारी बॉडी में से।
Turmeric helps to repair and regenerate liver function. Turmeric helps stabilize. बोल रहा है जो हल्दी है वो रिपेयर, और बोल रहा है कि जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, वो हमारी लीवर फंक्शन को रिपेयर करती है और वापस से रीजनरेट करती है जो लीवर का जो फंक्शन है उसको रीजनरेट करती है और रिपेयर करती है और एनहांस वो या अच्छा करती है हमारे लीवर के फंक्शन को। तो हमें हल्दी खानी चाहिए हम लोग को। The mitochondria, which is why it's very anti-cancer, because the origin of cancer happens with damaged mitochondria. बोल देंगे जो हमारा जो डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, हर सेल के हमारी बॉडी बनी सेलों से, ठीक है, वो हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपनी बॉडी अपने अंदर से एटीपी बना के बाहर भेजता है। एटीपी क्या है? एनर्जी है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से डैमेज होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कैंसर पैदा होता है, पता नहीं जो भी है। तो उसको रिपेयर करती है हल्दी। तो अगर आप हल्दी खाओगे या टर्मरिक खाओगे तो आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया सेलों के अंदर बनेगा, आपको जैसे ही बताया डॉक्टर। Turmeric is very heavily studied, especially in its ability to decrease fat on your liver. So if you combine. तो बोल रहा है टर्मरिक जो हल्दी है वो फैट आपके लीवर में से निकाल लेती है। और ये कुछ कीटो डाइट बता रहा है, कीटो डाइट की इसकी भी तस्वीर आई हुई है, आप इमेज दे सकते हो। जैसे कि कीटो जो डाइट है इसके अंदर ये ब्रोकली हो गई, कहाँ गया, ये ब्रोकली हो गई, तो ये पहली चीज़ ब्रोकली हो गई। दूसरी ये सोलोमन फिश हो गई, और ये अवाकाडो हो गए, और ये कुछ अखरोट हो गए। अच्छा ये जो वो है कीवी, वो इसके अंदर कैस्ट्रो होती तो ये मेरे ख़ास से नहीं खानी चाहिए। और अखरोट अच्छे हैं, अखरोट मीन्स वॉलनट, और ब्रोकली, अवाकाडो, इट इज़ जिंजर माइट भी, अदरक, ये अंडा हो गया, एग। मूंगफली तो नहीं खानी चाहिए, मूंगफली ख़राब होती है। बस ये है। तो ketogenic diet, low carb, with intermittent fasting and turmeric. ये बोल रहे हैं कि आप कीटोजेनिक डाइट खाते हो, जो कि शायद कुछ इन्होंने डाइट बताई है वो विथ इंटरमीडिएट फास्टिंग, मतलब इसी है कि आप एक खाने के बाद दूसरा खाने अगर आप खाते हो उसमें 6 घंटे का रेफरेंस वो वक्फा देते हो, तो उसको कीटो इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं। इसकी अलग वीडियो जो आप बाद में देख लेना, इस डॉक्टर बर्ग नहीं बनाई है। In some of these other compounds, you are going to be in really good shape as far as having a healthy liver. ये बोल रहे हैं कि आपका अगर हेल्थी लीवर है और आप अपने लीवर को अगर अच्छा कर देते हो, आप ये कीटोजेनिक डाइट खाते हो और इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो, मतलब खाने के बीच में आप खाना नहीं खाते हो, सिर्फ खाना ही खा हर 8-8 घंटे, मतलब दिन में से 2 दफ़ा खाना खाते हो, वो भी 8-8 घंटे बाद। तो और आप अच्छी डाइट खाते हो जो कि कीटोजेनिक है, जिसमें एवोकाडो हो गया और ये सब हो गया जो आपको दिखाई है, तो आपकी बॉडी बड़े अच्छा फील करेगी और आप अच्छा फिट रहोगे। Now, the next one on the list is beets. अच्छा अब ये जो सेकंड, अब जो नेक्स्ट नंबर 4 फूड है वो बीट हो गए, वो ये बीट्स हैं, ठीक है ना, नंबर 4 पे, ठीक है। Beets have always been known to help detox the liver. ये बोल रहे हैं बीट हमेशा पहचाने जाते हैं कि वो लीवर को डिटॉक्स करते हैं। बीट हमेशा पहचाने जाते हैं कि वो आपके लीवर को डिटॉक्स करते हैं, ठीक है ना। They can help reduce liver enzymes if the liver. बीट रिड्यूस करते हैं लीवर एंजाइम, बीट रिड्यूस करते, बीट ख़त्म करते हैं या कम करते हैं लीवर के एंजाइमों को। Enzymes are high, they can help reduce them. The phytonutrients in the pigments in beets. जो लीवर के एंजाइम जो कुछ ज़्यादा अगर एक्सेस में पैदा हो गए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उसको ये बीट जो है ना वो नॉर्मल कर देता है या कम कर देता है, जितनी बॉडी को चाहिए उतना कर देता है। Can help activate the release of bile salts, and that can help decrease the fat in your liver. But
बीट अच्छे होते हैं कि वो आपकी बाइल पैदा करते हैं? Beets are hepatoprotective, which means they protect the liver cells and they can significantly reduce inflammation in the liver. And ये बोल रहे हैं बीट जो है ज़्यादा अच्छा है कि आपके लीवर सेल को लीवर लीवर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, टूट फूट होती है, उससे आपको बचाता है और लीवर को हेल्दी करता है। तो आपको बीट खाना चाहिए। अभी बताते हैं बीट क्या है। मैं खास से चुकंदर हो गया बीट, और कुछ ऐसी हो गया। चुकंदर भी बड़ी अच्छी सब्जी है, इसके अंदर बताइए। if they can reduce inflammation in the liver, they can slow down the process of fibrosis and scar tissue and cirrhosis. Now, a question that people might have is, what about beets and being keto friendly? Is it going to spike my blood sugars? Well, if you don't juice beets and you have them, अब ये बोल रहे हैं कि जो बीट है वो कहीं इनकी जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं तो उनका इंसुलिन लेवल तो हाई नहीं कर देगा। तो क्या वो कीटो फ्रेंडली है या फिर डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए अच्छी है बीट के नहीं? तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो थोड़ा सा पीछे से देखते हैं कि बीट के बारे में वापस से क्या बता रहे हैं। salts, and that can help decrease the fat in your liver. But beets are hepatoprotective, which means they protect the liver cells and they can significantly reduce inflammation in the liver. And if they can reduce inflammation in the liver, they can slow down the process of fibrosis and scar tissue and cirrhosis. Now, a question. तो बोल रहे हैं कि अगर आपके बीट जो होते हैं ना, बीट वो आपके लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन और डैमेज से बचाता है। तो उसका मतलब बहुत सी जो बीमारी और लंग्स के और लीवर के अंदर पैदा होती है उससे आपको बचाता है, आपके लीवर को बचाता है। तो आपको बीट खाना चाहिए। अब ये आगे बताएगा कि आप बीट शुगर पेशेंट के लिए अच्छा है या नहीं, वो अभी आगे बताएगा। That people might have is, what about beets and being keto friendly? Is it going to spike my blood sugars? Well, if you don't juice beets and you बोल रहे क्या कि अभी सवाल एक राइज होता है, एक सवाल दिमाग में आता है कि क्या बीट उनके लिए अच्छा है जो कि शुगर पेशेंट है कि नहीं? have them steamed, there is some carbohydrates in there, but if you add the fiber in there, that will. ये मेरे ख्याल से चकोतर लग रहा है, ये मेरे ख्याल से बोल रहा है चुकंदर। तो बोलने के ये डॉक्टर बोल रहा है कि बीट के अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्योंकि रूट है इसके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वापस से पीछे से देखते थोड़ा सा। It can significantly reduce inflammation in the liver. And if they can reduce inflammation in the liver, they can slow down the process of fibrosis and scar tissue and cirrhosis. Now, a question that people might have is, what about beets and being keto friendly? Is it going to spike my blood sugars? Well, if you don't juice beets and you have them steamed, there is some carbohydrates in there, but if you add the fiber in there, that will buffer the insulin response. And so, in half a cup of beets, you're looking at. बोल रहे हैं कि इसके अंदर बीट जो होता है, जैसे कि चुकंदर हो गया, उसके अंदर थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं जो आपकी इंसुलिन बढ़ा सकते हैं। मगर अगर आप फाइबर डाइट के साथ खाते हो, इसी डाइट जिसके अंदर फाइबर हो, तो आप इस बीट को खाते हो, मतलब चुकंदर हो गया उसको खाते हो, तो आपकी हाथों के अंदर जाके ये बीट स्लोली आपके ब्लड के अंदर आएगा। तो उससे आपकी शुगर और इंसुलिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। मगर आप अगर फाइबर वाली डाइट के साथ खाते हो, और फाइबर वाली डाइट जैसे कि हो गई कुछ, आपको मालूम होगा कि फाइबर वाली डाइट किस चीज़ों में होती है। About only 6.7 grams of carbs, not terribly high. Now, the next food. तो ये बोल रहा है कि बीट के अंदर 6.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होती है। तो कुछ ज़्यादा, ये बोला है इतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है। मगर आप बीट को दूसरी अगर फाइबर वाले फूड के साथ खाते हो, तो ये हल्के हल्के इंसुलिन को ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट डालेगी, जिससे आपकी इंसुलिन इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं बढ़ेगी। तो अगर आप ये खा लेते हो, थोड़ी सी वॉक कर लो, वॉक करने का अगर शुगर थोड़ी बहुत बढ़ती हुई है तो वापस नॉर्मल हो जाएगी। 45 मिनट की वॉक अच्छी है। अगर आप चुकंदर खाते हो जो कि बीट हो गई, तो थोड़ी सी फिर आप वॉक करो, ताकि आपकी इंसुलिन अगर बॉडी में बढ़ गई है तो कम हो जाए, ठीक है। और फाइबर के साथ अगर आप खाते हो तो आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा शुगर नहीं जाएगी, तो स्लो हो जाएगी, जिससे आपकी शुगर वो बॉडी नॉर्मल रहेगी। तो ये बोल रहा है। Talk about is mushrooms.
अब ये मशरूम के बारे में बता रहा है कि नंबर 5 नंबर पे क्या है, मशरूम है। What's so important about mushrooms with the liver? Well, mushrooms are the food अब ये बोल रहे मशरूम क्या हेल्प करता है हमारे लीवर को अच्छा करने के लिए। बोल रहे मशरूम के अंदर हाई या केमिकल होता है। मशरूम के अंदर हाई हाई अमाउंट में और ज़्यादा केमिकल होता है। that has some of the highest amount of glutathione, and glutathione is the main antioxidant for the liver. तो बोल रहा है कि जो ये केमिकल है जो मशरूमों के अंदर होता है, ये वो लीवर के अंदर से टॉक्सिक केमिकल निकाल के बाहर फेंक देता है। तो टॉक्सिक केमिकल निकाल के बाहर फेंक देता है। Especially if you do turkey tail mushroom and oyster mushrooms and other mushrooms as well. Mushrooms are hepatoprotective. It means they protect the cells of the liver. All right, now we get to avocados. अच्छा, अब ये जो नया फूड आ चुका है जिसके बारे में बता रहे हैं वो ये अवाकाडो है। अवाकाडो Avocados are a great thing to consume to help repair and stabilize the ये अवाकाडो के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको वापस से देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है अवाकाडो के बारे में। glutathione. And glutathione is the main antioxidant for the liver, especially if you do अभी ये turkey tail मशरूम के बारे में mushroom फिर से कर रहे हैं, and थोड़ी oyster वीडियो पीछे कर mushrooms दी and है। other mushrooms as well. तो Mushrooms are इसको मत hepatoprotective. देखें। It means they protect the cells of the liver. All right, now we get to avocados. Avocados are a अब ये अवाकाडो के बारे में बात कर रहे हैं, तो अवाकाडो से शुरू करते हैं वापस से। great thing to consume to help repair and stabilize the liver. ये बोले अवाकाडो बहुत अच्छा है जो कि आपके लीवर को रिपेयर करता है और स्टेबलाइज करता है लीवर को। Avocados too are high in glutathione that support the liver. But the main thing about avocados is all you have to do is consume one avocado a week to see significant improvements in your liver function. बोल रहे हैं कि अगर आप सिर्फ एक अवाकाडो हफ्ते में एक ही दफ़ा खाते हो तो आपके लीवर के फंक्शन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पैदा होगी। Avocados are very, very anti-inflammatory and बोल रहे हैं अवाकाडो बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो टूट फूट की चीज़ होती हैं, इन्फ्लेमेशन से आपकी बॉडी के अंदर कैंसर पैदा होता है। इन्फ्लेमेशन से आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ पैदा होती है और भी बहुत से ट्यूमर पैदा होते हैं। तो अगर आप अवाकाडो खाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ख़त्म होती है, जैसे आप डायबिटीज़ से बच जाते हो, कैंसर से बच जाते हो और भी बहुत सी ट्यूमर या फिर बहुत सी बीमारियों से बच जाते हो। तो अवाकाडो हफ्ते में एक दफ़ा तो एक अवाकाडो हफ्ते में तो एक हफ्ते में खाना चाहिए। inflammation in the liver leads to so many issues, including hepatitis, including fatty liver, as well as cirrhosis. So anything that तो बोल रहे हैं इन्फ्लेमेशन से हमारी बॉडी के अंदर फैटी लीवर पैदा होता है और बहुत सी बीमारी पैदा होती हैं। तो उससे बचने के हमें अवाकाडो खाना चाहिए। can lower inflammation would be very good for the liver. And the last thing I'm going to recommend for the liver is extra virgin olive oil. बोल रहे हैं जो ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, नंबर 7 पे नंबर 7 पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो ये भी लीवर के लिए बड़ा अच्छा है। तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है ऑलिव ऑयल के बारे में। Just a very small amount. In fact, just one little teaspoon in your salad. ये बोलने का आप सिर्फ 1 टेबल स्पून भी आप ऑलिव ऑयल अपने खाने में डालते हो, मतलब अपने सलाद पे डालते हो, तो फिर क्या होता है अभी बताते हैं। Dressing can create significant improvements in liver enzymes. Extra virgin olive oil बोल रहे हैं जो लीवर के जो इंजाइम है उसके अंदर जो लीवर इंजाइम पैदा करता है अपने काम के लिए, ठीक है ना, तो उसके अंदर बेहतरी महसूस होती है। उसके अंदर वो अच्छे होते हैं अपने काम करने में। जब आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अपने खाने में थोड़ा सा 1 टेबल स्पून डालते हो, एक चाय का चम्मच अगर आप डालते हो तो उससे आपका लीवर के अंदर जो एंजाइम है वो अच्छे हो जाते हैं। increases fat on your liver. It improves insulin sensitivity. It reduces insulin.
बोल रहे कि ऑलिव ऑयल खाने से आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जो कि डायबिटीज़ होती है, वो बड़ी अच्छी होती है। तो आपके डायबिटीज़ के लिए बड़ा अच्छा है ऑलिव ऑयल। Resistance, and it's a very powerful anti-inflammatory. So there. और कैंसर से बचने के भी ऑलिव ऑयल बड़ा अच्छा है। एंटी इन्फ्लेमेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन जो कि बॉडी में टूट फूट और ख़राबी का बायस है सबसे बड़ा, तो उससे बचने के लिए ऑलिव ऑयल बड़ा अच्छा है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बड़ा अच्छा है, तो थोड़ा सा लेके खाना चाहिए। गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, गर्मियों में हीट पैदा होती है, और सर्दियों में खाए वहाँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। 1 टेबल स्पून काफ़ी है, हफ्ते में 1 दफ़ा शायद। Have it the best foods to help support a healthy liver. And if you haven't seen some of my other videos on the liver, I created a playlist for you right here. Check it out. ओके, लीवर के बारे में दूसरी अगर वीडियो देखनी है तो ये रही दूसरी वीडियो, जाते हैं उस पर भी। Chief Gaines, you have. And of course, my disclaimer here is that you're not. Hey guys, today we're going to use the foot as a way of diagnosing the liver. And of course, my disclaimer here is that you're not really diagnosing a liver disease. You have to go to the doctor and have them do tests to figure that out. But this will. ये नई वीडियो है जिसके अंदर ये कुछ बता रहे हैं कि 9 थिंग योर फिट कैन टेल यू अबाउट योर लीवर। जैसे कि इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं 9 थिंग योर फिट कैन टेल यू अबाउट योर लीवर प्रॉब्लम। मतलब आपका जो फिट है, आपका जो पैर है, वो बता रहा है कि आपको कौन कौन सी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इस वीडियो का टाइटल है, इसके बारे में हम और डीप में जाके देखते हैं। Give you some good clues on a potential problem with your liver. Okay? That being said, let's dive in. And these are just little indicators that can actually help you narrow things down. First thing we're going to talk about is the little red and brown dots. They can be. बोलने के आपके पैरों के ऊपर कुछ ऐसे लाल और या ब्राउन टाइप के डार्क स्पॉट होते हैं या डॉट होते हैं, तो ये किस चीज़ की निशानी है, अभी इसके बारे में बताते हैं। Larger and smaller, and you can also have like a little shininess to them. They're usually on the lower leg. मोस्टली नीचाई लेग के अंदर होते हैं। That is poor circulation, and that is usually a liver problem. ये निशानी कि आपकी टांगों में पुअर सर्कुलेशन सही से नहीं आ रही है, और ये लीवर की प्रॉब्लम की वजह से होते हैं कुछ। It could also be diabetes. It could be many other things, but you see this a lot when people have liver problems. So उनमें ज़्यादातर जिनकी लीवर की प्रॉब्लम होती है वो मोस्टली डायबिटीज़ वाले लोगों के अंदर भी होता है और दूसरे लोगों में भी होता है। तो उसके सही करने के बारे में बात आएंगे अभी आगे चल के। Actual appearance of the lower leg and the foot gives a lot of great information about the overall health of the person, because the heart has to send blood all the way down to your feet and then back through the vascular system. And usually if there's a liver problem or a heart problem, whatever, there's going to be a vascular problem. And you're going to. बोलने कि आपको चाहे लीवर की प्रॉब्लम हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो, वो आपकी वस्कुलर की प्रॉब्लम में भी तब्दील हो आती है। तो आपकी नसों के अंदर की प्रॉब्लम, आपकी नसों की प्रॉब्लम में भी वो तब्दील हो जाती है। तो अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या लीवर की प्रॉब्लम है, वो आपकी नसों की प्रॉब्लम में भी वो तब्दील हो जाती है। तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम या लीवर की प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है पहले स्टेज पे, या फिर आपको उसको सही करना है, तो आप नसों को देखो, और ख़ासतौर पे पैरों की नसों को देखो, उसमें क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो ये अब इसके अंदर बता रहे हैं कि एक तो रेड स्पॉट होते हैं आपके टांग वो पिंडलियों के ऊपर, और वो पुअर सर्कुलेशन की वजह से होते हैं, जो कि या तो लीवर या हार्ट की वजह से होते हैं। तो अभी उसके बारे में बताते हैं, उसका सोल्यूशन भी बता देंगे। See it in this part of your body a lot because of the poor circulation that's occurring. So a lot of these problems happen at the greatest distance from the heart. And also even with diabetes, for example, you see neurological problems in your feet and your hands because of that fact, because it affects the distal fingers, which is the. बोल रहे डायबिटीज़ की वजह से हमारे पैरों के अंदर न्यूरोलॉजिकल वो प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, जिसके नर्व डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पैरों के अंदर जो वो उंगलियां हैं, पैरों की उंगलियां, उसके अंदर थोड़ा सा नमनेस फील होती है, कुछ अजीब सा फील होता है। The point furthest away from the heart. Okay,
So you'll see red and brown little discoloration type specks on the lower leg, and then something called अब ये कुछ नई प्रॉब्लम बता रहे हैं कि टांगों के अंदर कुछ ऐसा भी हो जाता है. spider veins, or another name would be spider इन चीज़ों को जो उससे पहले बताइए, वो इनको स्पाइडर वेन बोलते हैं. nevus, which usually see this in cirrhosis, and what's और ये सिरोसिस में होती है. happening to the liver is you're building up a lot of estrogen, and तो ये होती है क्योंकि आपका लीवर ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन हार्मोन निकाल के भेज रहा है. and too much estrogen can affect the vascular system. So you can see varicose vein. बोल रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही एस्ट्रोजन आपके जब ब्लड के अंदर आ जाता है, क्योंकि लीवर जब बना के कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में एस्ट्रोजन आपके ब्लड में डाल रहा है, तो उसकी वजह से आपकी टांगों के अंदर सबसे पहले आपको नज़र आता है कि कुछ टाइप की ऐसी स्पाइडर वेन या फिर स्पाइडर वेन जो आपको पे तस्वीरों में दिखाया वो इस टाइप की बन जाती है आपके पैरों में. तो ये पहली निशानी है कि आपके ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा पैदा हो रहा है, क्योंकि लीवर बना के बैठ रहा है. In spider veins, and you can see them in the lower legs. जैसे आपके लोअर लेग्स में ये सब नजर आती हैं. तो अब ये और नए चीज़ क्या बता रहा है वो देखते हैं. Then we have cracked heels. Okay. जैसे कि आपके हील के अंदर कुछ क्रैक्डनेस फील होती है, जिसको हम सही करने के मोस्टली क्रीमें लगाते हैं. तो ये क्या वजह है और उससे क्या ये किस प्रॉब्लम की वजह से पैदा होती है, वो अभी उसका क्या सोल्यूशन होगा अभी बताएंगे शायद. This is usually a vitamin B3 deficiency. ये जो क्रैकनेस पैदा होती है विटामिन B3 की कमी की वजह से होती है. विटामिन B3 की कमी की वजह से पैदा होती है ये प्रॉब्लम. Or an omega-3 fatty acid या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी की वजह से पैदा होती है. deficiency. Why? Because one of the functions of the liver is to make bile, and क्योंकि जो एक फंक्शन है लीवर का वो ये कि वो प्रोड्यूस करे बाइल, help you absorb these fatty acids. और ये जो बाइल हमारा जो पेट के अंदर जो स्टमक के बाद जो आती हैं उसके अंदर हमारा जो लीवर है वो बाइल प्रोड्यूस करके डालता है. वो बाइल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है विटामिन B3 और ओमेगा 3 फैटी एसिड. Not just omega-3 fatty acids, but vitamin A, which could be involved in the skin. और विटामिन A को भी एब्जॉर्ब करता है जो हमारी आँखों के लिए इम्पॉर्टेंट है. Vitamin E, which could be involved in the skin. Those are fat-soluble vitamins. But vitamin B3 also affects the skin. Other B vitamins. विटामिन B3 जो होती है अगर वो एब्जॉर्ब ना हो तो उससे हमारे पैरों के अंदर क्रैक आ जाते हैं. वो बाइल हमारे लीवर में से सही से प्रोड्यूस नहीं होती, तभी वो B3 हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है. Also can affect the skin as well. Just how they relate to the cofactor to help the enzymes work, especially with proteins. So B3 deficiency can create a problem. Another name for that would be pellagra. People with pellagra. ये कोई नई प्रॉब्लम है पेलाग्रा, जिसको किस वजह से होती है अभी ये बताता है. Which is a B3 deficiency, have a lot. पेलाग्रा भी विटामिन B3 की कमी की वजह से होती है, और ये कमी ये होती है क्योंकि शायद हमारा लीवर बाइल प्रोड्यूस करके नहीं देता शायद मतलब क्या हुआ है उसके बारे में डॉक्टर वर्ग बताता है. Skin issues. All right, itching of the foot, usually in the. इचिंग मतलब हमारे फुट के अंदर कुछ इचिंग होती है, कुछ होता है जो जिसके बारे में बताता है. Bottom of the foot, that is a backup of fluids into the liver. It's a congested liver. It could be bile backing up, and you're getting a buildup of histamines, a congested liver, so you can have itching in the foot. Also, you can have pain or inflammation in the bottom of the foot. आपके पैरों के अंदर इन्फ्लेमेशन या पेन एक ही चीज़ है. इन्फ्लेमेशन का नाम वो जब होता है तो वो क्यों होता है वो बताता है. A lot of times people associate that with something called plantar fasciitis, when it's really not plantar fasciitis. It's just a liver problem. And then बोलने के जो हमारे पैरों के तलवों के नीचे पेन होता है वो लीवर की प्रॉब्लम की वजह से होता है. also have hot feet. Hot feet is another symptom of a bad liver.
And then हो गया हमारे पैरों के नीचे कुछ ऐसा लगता है कि जल रहा है, वो भी लीवर की प्रॉब्लम की वजह से होता है। जब पैर नीचे से जलने लगे तो ऐसा लगता है कोई लीवर की प्रॉब्लम है। we have bad odor. So you have smelly feet. Why? Because the liver is not able to detoxify correctly and it's backing up through the skin. Usually, if the liver's bad, the person's diet is pretty bad and their entire body is backed up with garbage, especially the large intestine and the kidneys, and it's coming out through the skin. So you can't just have a really terrible, unhealthy, bad liver and have a very healthy kidney or colon. If one is bad, they're usually all pretty congested and unhealthy. बोलने कि अगर आपका लीवर ही ख़राब हो जाए, वो बैड हो जाए, तो उससे आपके ज़रूरी नहीं कि आपकी किडनी सही रहेगी, आपकी किडनी को भी वो ख़राब करेगा और भी बहुत दूसरे ऑर्गनों को ख़राब कर सकता है। तो आपको लीवर को सही करना है, जो कि पहले इस वीडियो की शुरुआत में हम बता चुके हैं। लीवर को सही करने के कौन कौन से फूड खाने चाहिए, जैसे ब्रोकली हो गई, बहुत सी हो गई, कौन से वेजिटेबल खाने चाहिए। ठीक है, ऑलिव ऑयल भी उसके अंदर आता है, मगर 1 टेबल स्पून वो खाना चाहिए थोड़ा बहुत। Okay, pitting edema. That's where you press your finger into. ये अब एडीमा के बारे में बताएं, जैसे कि हमारे लोअर लेग के अंदर फ्लूइड जमा होता है, जिसके बाद हम लोग अपनी उंगली मारते हैं टांग पे, तो फिर इस टाइप का सुराख जैसा बच जाता है। तो फिर इसके बारे में, इस एडीमा के बारे में बता रहा है कि डॉक्टर को क्या करना चाहिए। इस चीज़ को हम लोग जो मेडिकल टर्म के अंदर एडीमा बोलते हैं। ठीक है ना। The lower leg and it leaves a dent and it just stays there. That's fluid backup. That's a common liver symptom. तो ये जो है लीवर का सिम्टम है कि आपका लीवर थोड़ा सा ख़राब है। एडीमा जो है ना, वो लीवर का सिम्टम है। Then we have fungus, toenail fungus. People with और फंगस, जैसे कि हमारी जो सपोज़ को हमारी जो ये उंगलियां हो गई पैर की, इन उंगलियों के ऊपर जो ये थोड़ा सा जो नाखून हो गए, नाखून के पास थोड़ा फंगस और थोड़ा बैक्टीरिया जैसे या फिर ग्रीन टाइप का कुछ फंगस टाइप का लगने लगता है। वो भी क्या लीवर की प्रॉब्लम है, उसके बारे में बता रहे हैं अभी। liver problems have a higher level of fungus growing on their body because they usually have an imbalance in the microflora in the gut, and that is going to relate to an overgrowth of. बोलने के जो हमारे लीवर की प्रॉब्लम की वजह से अभी देखते हैं पीछे करके क्या बोल रहा था। In the gut, and that is going to relate to microflora in the gut, and that is going to. बोला कि माइक्रोफ्लोराइड कुछ हमारे पेट के अंदर जब ज़्यादा हो जाती हैं तो उससे कुछ ही होता है, मगर क्यों होती हैं भी ये बताता है आगे शायद। Relate to an overgrowth of fungus and yeast on the outside of the body. So that's why you see like dandruff and psoriasis, toenail fungus. तो हमारी बॉडी सेल के ऊपर जो डैंड्रफ निकल रहा है या फिर कुछ फंगस निकल रहे हैं, तो ये सब होता है कि हमारे पेट के अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म पैदा हो जाती है। तो उसका क्या मसला है, उसको सही कैसे करते हैं बताएंगे अभी। And then the nail bed, and it could actually happen on the hands or the feet. The nail bed is going to be white. You're going to usually lose that little moon-shaped thing, luna, down here. So it's going to be white because of the poor circulation that's occurring. ओके, जो हमारे टांगों के जो नाखून है, ये मोस्टली इस हिस्से के बाद इस एरिया में रेड होते हैं और इस साइड पे वाइट होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो फिर क्या बोल रहा है कि ये पूरा हिस्सा है, ये भी वाइट हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो खून की नसें जो यहाँ से आ रही हैं वो कुछ ब्लॉक हो जाती हैं, तो ब्लड आने से ब्लॉक हो जाता है, तो फिर ब्लड नहीं आता यहाँ पर, तो ब्लॉकेज की वजह से। तो आगे अभी ये बताते क्या करते हैं on that nail bed. All right, so then the next question is, what really causes liver problems? A lot of things. One big one is the side effect from medications. Another one is. तो ये लीवर प्रॉब्लम किस वजह से होती हैं? पहली चीज़ है मेडिसिन जो हम खाते हैं उसकी वजह से लीवर प्रॉब्लम होती है। दूसरा, हम जो शुगर ज़्यादा खाते हैं उससे भी, जैसे कि हम जूसेस पी रहे हैं या फिर दूसरे शुगर, चाय में ज़्यादा शुगर, या फिर किसी टिम हॉर्टन पी रहे हैं या फिर किसी चीज़ें, तो उससे
हमारे लीवर के अंदर ज़्यादातर टमाटर का नाम है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें शुगर हो, ठीक है, तो ज़्यादा अगर खाने से आपकी लीवर की प्रॉब्लम पैदा होती है। Lot of sugar in the diet, especially high fructose corn syrup. Cooked foods. So if you're just having canned foods, which are कोई भी आप कुक फूड खाते हो या फिर ये सब फूड खाते हो जो कि केन के अंदर पे से बंद हो, वो भी आपके लीवर की प्रॉब्लम करता है। तो आप कोई पैक आइटम मत खाओ जो कि ऑलरेडी पैक हो, जैसे कि हम सोलोमन, वो हम लोग यहाँ पर टूना फिश खाते हैं जो कि MOC इस तरीके से मिलती है टोरंटो के अंदर। तो ऐसी, या फिर कोई भी केन पाइनएप्पल हम लोग खाते हैं, नहीं खाना चाहिए हम लोगों को। कोई भी टिन पैक आइटम नहीं खाना चाहिए, कोई भी पैक आइटम, ऑयली पैक आइटम नहीं खाना चाहिए। इवन पैक सैंडविचेस मिलते हैं वो भी नहीं खाना चाहिए जो कि थैली के अंदर बंद होते हैं, वो आपकी खा भी करते हैं कि वो केमिकल निकल के, शायद प्लास्टिक का केमिकल निकल के वो सैंडविच के अंदर जाता है, वही हम खा जाते हैं। तो pasteurized and you're not having anything raw, that's eventually going to be very, very hard on the liver and the kidney. And also a lack of any vegetables. And if you're eating junk food combined with that, अगर हम वेजिटेबल कम खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खाएं, जैसे कि KFC हो गई या फिर कोई भी बर्गर शर्गर हो गया, चिकन बिरयानी हो गई तो उससे भी खराबी होती है। तो आप वेजिटेबल ज़्यादा खाओ। you have no enzymes to put in the body, no antioxidants from these vegetables. तो बोलने के जैसे कि आप ऐसी वेजिटेबल खाना ज़रूरी है, जैसे कि ये सारी वेजिटेबल दी हुई हैं, अगर आप कम खाओगे तो आपके बॉडी में इसकी कमी रहेगी, जिससे आपका ये सारे नुकसान हो सकते हैं लीवर के। So that can be a problem. Excessive alcohol, that's a given. And then excessive protein. So if you're doing massive amounts of अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन खाते हो, मतलब ज़्यादा अमाउंट में गोश्त खा रहे हो, ठीक है, जैसे बॉडी बिल्डर बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, मगर एक्सरसाइज करनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है, तो फिर उससे भी आपकी लीवर प्रॉब्लम होती है। तो ज़्यादा गोश्त नहीं खाना चाहिए, हफ्ते में से एक दफ़ा गोश्त खाए, वो भी मुर्गी का, ना बकरा खाए ना काय खाए। protein, it built up a lot of nitrogen waste. Over time, that can then तो हम जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो ज़्यादा पैदा हो जाती है। overload the liver and the kidney and put a lot of stress on it. So if तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो हमारे किडनी के ऊपर ओवरलोड हुआ था, जिससे हमारे किडनी के ऊपर स्ट्रेस पैदा होती है। there is liver damage or kidney damage, you want to go a little lower on the protein, higher on the vegetables. Okay. तो अगर आप किडनी डैमेज से अपने आप को बचाना चाहते हो, अगर आप अपने आप को लीवर डैमेज से बचाना चाहते हो, तो आप प्रोटीन कम खाओ और सब्जियां ज़्यादा खाओ। सब्जियों में आपके सामने ये सब्जियां आ रही हैं, जैसे कि बहुत सारी सब्जियां हैं। टमाटर हो गए, टमाटर इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के अच्छे होते हैं, इन्फ्लेमेशन से हमारे ऑर्गन डैमेज होते हैं, जैसे किडनी हो गई, लीवर हो गया। तो इससे बचने के हमें एंटी इन्फ्लेमेशन फूड खानी चाहिए, जिसमें ऑलिव ऑयल हो गया, टमाटर हो गए, और बहुत सी सब्ज़ियाँ दिखा रहे हैं, गार्लिक हो गया, शिमला मिर्च हो गई, और चुकंदर सबसे अच्छी चीज़ हो गई, गार्लिक पड़ा हुआ है, ठीक है। So now what is a good diet for the liver? Now if you're new to my channel, अब ये बोल रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि कौन सी ऐसी अच्छी डाइट है जो कि लीवर के लिए हो, अब वो बता रहा है। अब ये बोल रहा है कोई इसका कुछ चैनल है, click the link down below. I will show you a combination अब ये बोल रहा है कि कोई कीटो डाइट है जिसका कोई कम्बिनेशन है जो कि आपके लीवर के लिए अच्छा होगा। of a healthy ketogenic diet and intermittent fasting. Okay, so that's what I'm going to recommend. बोल रहा है कि अच्छी कीटो डाइट खानी चाहिए और इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी चाहिए। इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, आपने अगर एक दफ़ा सुबह को दोपहर में 2 बजे खाना खाया तो उसके बीच में कुछ चींगो मत, मतलब कुछ खाओ मत, फिर आप ठीक 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद खाना दूसरा खाओ, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, और ये इससे हम लोग शुगर से और डायबिटीज़ से बच सकते हैं। और ख़ास तौर पर चीनी वाली चीज़ें खाना छोड़ दो, और कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग में कुछ हो तो फिर थोड़ा सा बादाम अगर हो, थोड़े बादाम खा लो, अपने पास बादाम रखो, बादाम थोड़े से खा लो, या फिर कोई अखरोट होगा, हल्के फुल्के अखरोट खाइए। सर्दियों में अखरोट खाने का थोड़े थोड़े, ठीक है, ज़्यादा नहीं, मगर बादाम खाने के। गर्मियों में आप बादाम भी खा सकते हो, रात को भिगो दो पानी के अंदर और उसे ढक के,
और फिर ठंडा हो जाएगा बादाम, सुबह को लेके अपने पास रखो साफ़ सुथरी चीज़ के अंदर, फिर से हल्का करके बादाम खा लो, तो उससे कार्बोहाइड्रेट की कमी पूरी आती है। और ये ज़्यादातर बंदे को शुगर भी नहीं देता और बंदा का फिट रहता है। और अगर ज़्यादा ही कुछ है तो कुछ किशमिश हो गई, किशमिश खा लिया अगर ज़्यादा ही, वो सर्दियों के अंदर है, गर्मियों में इस किशमिश नहीं खानी। मगर ऐसी चीज़ें, मगर आर्टिफिशियल चीज़ें हो गई जैसे टॉफ़ियाँ हो गई और केक हो गई, पेस्ट्रियाँ हो गई, इन चीज़ों से अपना को दूर ही रखो। For those of you that are not new and you've been on my channel, if you watch a lot of videos, you already know this. You're on the program. You're already getting great success. So go ahead and put your comments down below so the new people can see that this really does work. All right, thanks for watching. तो हम इस चीज़ को अभी रोकते हैं, नहीं तो और भी बहुत सारी आने की, जैसे कि हाउ टू स्ट्रेस, कॉज ऑफ स्ट्रेस, हाउ इट अफेक्ट योर बॉडी, तो ये भी एक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो इनके बारे में वीडियो बाद में बनाएंगे, मगर पहले ये बताइए ताकि हेल्थ का थोड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल सही हो सके। तो अभी इस वीडियो के अंदर लीवर को सही करने के बारे में बताया, और नेक्स्ट वीडियो में हम और वीडियो के बारे में देखेंगे। तो एक तरीके का ये रिव्यू हो गया और एक तरीके का रिएक्शन हो गया किसी एक वीडियो पे, हेल्थ की वीडियो पे। और एज अ बॉडी बिल्डिंग जो मैंने की उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताया कि अच्छा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं अभी एक वीडियो और अपना ऑन पर्सनल बताऊँगा कि बॉडी बिल्डिंग में कैसे कैसे करनी चाहिए, जो कि आपके शायद अच्छा गेन हो। मैं पूरी एक बुक लिखी हुई है, उस पर आप देख सकते, उस पर आपको मैं दिखाऊंगा कुछ टाइम पे वो बात। मगर इसमें हमने लीवर को अच्छा करने के लिए क्या होता है, जो कि डॉक्टर बर्ग ने बताया, ठीक है। तो लीवर को अच्छा करने के लिए क्या होता है, तो हमने इस वीडियो में देखा, तो उस पर रिएक्शन दिया, फिर उस पर समझा कि रिएक्शन नहीं तरीके से उर्दू में हमारी पर्सन लोकल लैंग्वेज में हमने एनालिसिस किया कि डॉक्टर क्या बोल रहा है, तो उसको मैं समझा डॉक्टर बर्ग क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अब ये वीडियो ख़त्म करते हैं इसी जगह पे। नेक्स्ट टाइम पे कोई नई वीडियो, कोई नई हेल्थ की वीडियो पे हम बात करेंगे, या फिर बस ये सब चीज़ें हैं। हेल्थ को सही रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ सही रहेगी तो सब चीज़ सही रहती है। तो अब इसको हम ख़त्म करते हैं।